We are preparing income statement, and that is a simple income statement. It is not from accruals. The simple income statement from your book, Frankwood, 9.5a is the question. And the income statement usually starts from revenue. Revenue is maybe called as sales also. So what is the revenue given in the question? If you just look at the second point, it will always be given on the credit side, and the revenue given on the credit side is 276,400. So I'm going to write at the revenue column 276,400. I will subtract less return inward. Return inward will be subtracted from the sales, but there is no return inward given in the question. In this question, return inward is not given. So I will not subtract anything from revenue because return inward is not given in the question. So I will start after writing revenue. I have to subtract cost of sales from revenue. This cost of sales, I will start from opening inventory. Opening inventory is given in the question, that is 52,800. So I will write over here 2,800, and I will add purchases into this. Now what we do, Amal, we used to prepare another column for purchases. If something has to be subtracted and something has to be added in the column of purchases, it is better to go for another column. It is not compulsion. You can do all these workings in the second column also, but I prefer that we should go for a third inner column, and the purchases amount is 141,300. 141,300 is the amount of purchases, and from this purchases I have to subtract less return outward. Return outward means purchases return that needs to be subtracted, and purchases return is given in the question, and the amount of purchases return is 2408. So that will be subtracted from this, and carriage inward will be added in purchases because that is the carriage which you have paid to bring the goods into the factory. So that is a part of purchases actually, and the amount is 1350. It is a part of purchases. ये हम ऐड कर देंगे और आगे हमारी आ जाएंगी नेट परचेजेस, इसे हम नेट परचेजेस भी कह सकते हैं. 141,300 minus 2408 and plus 1350. The amount of net purchases is 140,242. 140,242. ये हम ऐड कर लेते हैं कॉलम्स को. इसमें से हम लेस कर देंगे जी. ओहो, क्लोजिंग इन्वेंटरी इसमें से माइनस कर देंगे हम. ये थोड़ा गलत हो गया है. जी 2,800 plus 140,242 आ जाएगा 193,042. ये आपका आ जाएगा जी 193,042. इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंटरी. Closing inventory is always given at the end of trial balance. If you just look at the end of the trial balance, it is given 58440. So closing inventory is given 58440. One 34602. So this will come 134,602. माइनस कर देंगे इसमें से माइनस 276,400. आपका आ जाएगा 141,798. So this will come 141,798, and that will be your gross profit. And after gross profit, we need to subtract less expenses. Less expenses इसमें से माइनस कर देंगे, and these are all indirect expenses.
which are not incurred in the factory, which are incurred after the factory in the office. So the expenses, number one expense is carriage outward. Carriage outward is an indirect expense. Carriage inward is a direct expense. Both are expenses, both will be debited, but carriage inward is a direct expense. Carriage outward is an indirect expense. What is the amount of carriage outward which is given in the question? Amount is 5840. Okay. Next, if you just look at the other expenses, wages and salaries 63400. I'm going to write over here. It is 63400. And next is business rates 3800. This will come over here 3800. Then if you just move forward, there are more expenses, communication expenses of 714. I'm going to write them. Then after communication expenses, there are commission paid of 1930. That is also an expense. Commission paid. Because you are paying the commission. That is an expense, obviously. 1930 is the expense of commission paid. Then there is insurance of 1830. Insurance is given. That is 1830. Also an expense. Then comes sundry expenses. Sundry expenses means any other expense. Say a combination of some small expenses. And sundry expenses given is 208. Now I will go for the total of expenses, and that total of expenses will be subtracted from the gross profit to find the amount of net profit. 5840 plus 63400 plus 3800 plus 714 plus 1930 plus 1830 plus 208. So 77722 will be the total of your expenses. So I will write over here 77722. और ये मैं माइनस कर दूंगा 1417986. 64076 is my gross profit. 64076 is my net profit. I'm sorry. It's my profit for the year. This is how we are going to prepare the income statement when you are having return outwards also in the question, and carriage inward and carriage outward is also given in the question. Now I am going to prepare the balance sheet for the same question, and which is also is going to prepare in the same format which we have discussed in our last meeting. So let's start preparing the statement of financial position. Go for the columns. First of all, you need to write non-current assets in the statement of financial position. That in the first instance, non-current assets. Now I have to look at the question that what amount of or what kind of non-current assets are given in the question. If you just look at the question, there are buildings of 1,25,000, which is a non-current asset, and then there are fixture of 1106. So building, I will write 1,25,000. I can write it in the outer column also, because there is no depreciation or other things related to building is given. I can easily write them in the outer column also. And this fixture amount is 1106. Now I am going to go for the total of these two. Means 125
0 plus 1106 is 126106. Is 126106. Now comes current assets. Current assets are basically, first current asset which comes in the is important to come in the first instant is closing inventory. We used to write it from least liquid to most liquid, यानी जो सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, देर से कैश में कन्वर्ट होता है, उसको पहले लिखेंगे और बाकियों को बाद में लिखेंगे. तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इज द लीस्ट लिक्विड एसेट एंड द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 58440. क्लोजिंग इन्वेंटरी के दो फैक्ट होते हैं, एक तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस भी करते हैं आप, और दूसरा फैक्ट ये कि इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आप लिखते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल, या इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप. तो ट्रेड रिसीवेबल जो आपको दिए हुए वो दिए हुए आपको 45900 के, और यू में से अकाउंट रिसीवेबल आपको दिए हुए 45900. आफ्टर दैट account receivable we have been given cash at bank and cash in hand. I will write over here cash at bank and also cash in hand. Cash at bank is given in the question with an amount of 31420. 31420, and cash in hand is given in the question with an amount of only 276, which is a minor amount. तो हम ऐड कर लेते हैं जी सबको. 58440 plus 45900 plus 31420 और plus 276, ये 136036 आपका आ जाएगा आंसर इसका, जो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 136076. I'll go for the total, and that will be my total assets, obviously 136076 plus 126106. 262142 is going to be my total assets. 262142, that will be my total assets. Then comes capital and liabilities. कैपिटल लायबिलिटीज में आपको पता है सबसे पहले कैपिटल ही लिखना होता है हमने, और कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, बिकॉज बेसिकली प्रॉफिट लाइज विद द ओनर. कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं बिकॉज प्रॉफिट नीड्स टू बी गिवन टू द ओनर, एंड ड्राइंग्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल बिकॉज that is for his personal use. Amount withdrawn by the owner for his personal use is called drawings, and that is always subtracted from capital. So capital is given 210516. 210516. इसमें हम प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेते हैं. प्रॉफिट है जी आपका 64076. लेस कर देंगे इसमें से हम ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड 37320, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है इसलिए ड्राइंग्स डेबिट होती है. उसका ऑपोजिट जो उसने इफेक्ट डालना होता है. 37320 विल बी द ड्राइंग्स. इसका हम इफेक्ट ले लेते हैं. तो 210516 प्लस 64076 माइनस 37320, 237272 आपका आ जाएगा. ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा 237272. Then comes non-current liabilities. This is our bank loan and other things, लेकिन वो इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है. I will start writing current liabilities. नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती थी, मॉर्गेज लोन हो सकता था, कोई बैंक लोन हो सकता था लॉन्ग टर्म, विच इज ए लोन फॉर मोर देन 1 ईयर. बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने नहीं ली. लेकिन मैंने
हेडिंग दी है ताकि यू मे बी एबल टू नो दैट नॉन करंट लायबिलिटी कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपके क्या आ जाते हैं, अकाउंट पेएबल, ट्रेड पेएबल्स भी कहते हैं इसको। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वो दिया हुआ था आपको, ये दिए हुए आपको 24870 के अकाउंट पेएबल जो दिए हुए आपको, वो दिए हुए 24870। इसको हम क्या कर लेंगे जी, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास ये टोटल एसेट्स आ जाते हैं 237272 plus 24870, that comes to 6214. that is the equal answer what we are going to drive। ये आपका आ जाएगा जी 26214, सॉरी 142। टोटल एसेट्स हमारे बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, ये हमने प्रूव कर लिया एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। तो देखें, इसमें आपको कोई मसला है तो मुझे बताएं, एनी प्रॉब्लम? No, sir. हमें कोई मसला है तो बताएं। No, sir. अमल, एनी प्रॉब्लम? No, sir. And Salman, you are here, but I was हमने ये बेटा क्वेश्चन किया सॉल्व अभी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से आपके सामने। 9.5 एक्सरसाइज है ओ लेवल्स की फ्रैंकफर्ट की बुक में, 9.5 की एक्सरसाइज है जिसका मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी इसका क्वेश्चन, ताकि घर में कम से कम आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। मुझे आप 1 मिनट दें जरा, ताकि मैं आपसे शेयर करूं इसकी पिक्चर लेके। क्लियर नहीं आ रही है, आई डोंट नो क्लियर जाएगी नहीं, देख लेते हैं। नहीं, ये क्लियर नहीं गई, दोबारा लेनी पड़ेगी कैमरे से, फिर ये क्लियर आएगी। तो देखिए जी, हमने सबसे पहले सेल से स्टार्ट किया इसको, सेल से हम स्टार्ट करेंगे और सेल्स रेवेन्यू को कहते हैं। अब ये चली गई सरमद, आपके पास भी चली गई है, और ये क्वेश्चन हम जो है वो कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपकी बुक में क्वेश्चन मौजूद है मोहम्मद, फिर भी मैंने भेज दिया है कि हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे थे, किसका, इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। और इस क्वेश्चन में हमने क्या बनाया जी, हमने रेवेन्यू से स्टार्ट किया। सबसे पहले 9.5 देखिए मैंने भेजा है आपको, 9.5 है, हम स्टार्ट करेंगे उसको रेवेन्यू से यानी सेल से, और सेल आपकी कितनी है 276,400, लेस कर देंगे हम उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितने की चीजें आपको कॉस्ट पड़ती है उन सेल्स की, वो लिखी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री देखें लिखी हुई है आपके सामने, आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं, वो है आपकी 52800 की। उसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस, और परचेजेस में से आपको रिटर्न आउटवर्ड जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो परचेजेस का हिस्सा नहीं है, राइट। रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे एंड कैरेज इनवर्ड हम ऐड कर देंगे। तो 141,300 इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, इसमें रिटर्न आउटवर्ड आप माइनस करेंगे 2408, और कैरेज इनवर्ड आप ऐड कर देंगे 1350, तो आपका आंसर आ जाएगा 140242। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में आप जो परचेजेस का आंसर निकला है वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 193042। उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, ये वही फॉर्मेट है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 134602, और वो हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो जीपी आपके पास आ जाएगा 141798। इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जी, कैरेज आउटवर्ड आ रहा है आपका, दैट इज एन एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस रेट्स भी आपका एक्सपेंस है। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस दिए हुए वो लिखेंगे। कमीशन पेड है,
इंश्योरेंस है और सन्ड्री एक्सपेंसेस है। इन सब का आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 77722। क्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 64076। दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि हमने बेसिकली कैपिटल में ऐड करना है। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। तो इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप लेट भी ज्वाइन किया तो मैंने उसको ओवरव्यू दे दिया, इसकी आप पिक ले लें, घर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकें। तो उसकी पिक्चर ले लें, क्योंकि मैंने 9.4 की पिक्चर भी आपको भेजी है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप घर में इसको खुद भी सॉल्व करें। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो परचेजेस में ऐड हो जाता है। और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वो कैरेज आउटवर्ड हम एक्सपेंसेस में लिखते हैं। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं होता। उसके बाद आपकी आती है बैलेंस शीट, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हम कैसे बनाएंगे या बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्ट हम करते हैं इसको नॉन करंट एसेट से। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको उसने बिल्डिंग दी हुई है 1,25,000 की, मैंने वो लिख ली बिल्डिंग 1,25,000। उसके बाद आगे देखें, आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग के बाद फिक्सचर, जो कि लिखी हुई 1106 की। ठीक है जी, तो आपका आ जाएगा 126,106। फिर करंट एसेट्स आपके आ जाएंगे। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के 2 फैक्ट्स हैं। एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप परचेजेस में से माइनस भी करते हैं, दूसरा वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी लिखते हैं आप। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस भी किया है, और वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या जाते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो भी करंट एसेट है आपका, वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं। फिर आप क्या जाते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को बैंक भी कह सकते हैं सिंपल, और कैश इन हैंड ऐड कर देंगे तो 136,076 आपका आ जाएगा। टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे 262,142। फिर आपके आ जाएंगे जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे जी 210,516, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट 64076, लेस कर देंगे ड्राइंग्स 37320, तो आपका आंसर आ जाएगा 237,272। दैट इज द आंसर ऑफ द कैपिटल। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी जी, जो कि क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। बेटा प्रॉफिट ऑलवेज रेस्ट विद द ओनर। ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस लिए की है, प्रॉफिट कमाने के लिए ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। और ड्राइंग्स क्या होती हैं, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, दैट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 237,272, आपका कैपिटल का आंसर आ जाएगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आप लिखते हैं, जो कि फिलहाल क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो फिर आती है करंट लायबिलिटीज, जिसमें हम लिखते हैं अकाउंट पेएबल, वो लोग जिनसे आपने चीजें खरीदी हैं लेकिन अभी तक आपने उनको पैसे नहीं दिए, पेएबल है ना, वो है 24870 की। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 262,142, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। एक्चुअली बैलेंस शीट जो है बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत ही तो बनी है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमने यही किया, लेकिन वो डिटेल में हमने अब इसको बताया। हमने डिटेल्स में बेसिकली सॉल्व किया इसको, डिटेल में सॉल्व किया है, लेकिन है वही कि एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन के तहत हमने बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाया है सवाल में। अब आपने इस क्वेश्चन पर बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपने घर में करने हैं ऑब्वियसली। वो 9.3 है, 9.4 है, 9.6 है, बिकॉज 9.5 मैंने करवा दी है, और 9.9 है। समझ आपके पास, बिकॉज 9.4 चला गया तो 9.4 आप सॉल्व कर लें और वो एनफ होगा आपके लिए। लेकिन जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। 9.3 भी आप सॉल्व करें, 9.4 भी सॉल्व करें, 9.6 भी और 9.9 भी। तो दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली। वाई? क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल में मैंने आपको बताया था, देखिए हमने क्या पढ़ा है अकाउंटिंग साइकिल में, हम जरा दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी होती है, सबसे पहले हमारी क्या होती है जी, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी मॉनेटरी डीलिंग बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से फिर हमारा क्या बनता है जी, जर्नल। जर्नल में हम क्या पास करते हैं, जर्नल में हम एंट्री पास करते हैं। जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं, और ये एंट्रीज हम किस बेसिस पर पास करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बेसिस पर। जर्नल के बाद आपका बनता है जी लेजर।
लेजर में हम क्या बनाते हैं? लेजर में हम बनाते हैं टी अकाउंट्स, और टी अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं उसकी हम, और वो भी हम ट्रांजैक्शन के बाद हम बनाते हैं जर्नल, और जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। लेजर के बाद बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। लेजर के जो अकाउंट्स आपके निकलते हैं उनसे हम आगे बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो कि क्वेश्चन में आपके इस दफा भी दिया हुआ था, जिसकी मदद से मैंने आगे क्या बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाए। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम दो चीजें बनाते हैं, हमने अभी आज बनाना सीखी भी हैं। इसमें एक को हम कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी को हम कहते हैं जी बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, जो हमने आज इसको पढ़ा है। तो अकाउंटिंग साइकिल, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल बनता है जिसमें आप एंट्रीज पास करते हैं, फिर लेजर बनता है इसमें आप टी अकाउंट्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, इसमें बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये था हमारा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल जो है वो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने घर में लाजमी करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो इसमें ना आए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आपने समझना है। वो आपका हमारी बुक में से है, जिसे हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेटा एक्सपेंडिचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप इनकर करते हैं, और इनकम भी इनकर करते हैं। लेकिन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज समथिंग डिफरेंट। इसके कुछ रूल्स हैं, 5 कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पांचों पूरी होंगी तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। वो मैं आपको समझाता हूं अभी साथ साथ। और यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, समझ आ गई है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। मोहम्मद, एनी प्रॉब्लम? अमन, सरमत, कोई मसला है तो बताएं। सर अभी तक तो ठीक है। जी बताएं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम अभी तक। जी एनी प्रॉब्लम? आर यू देयर विद मी इन द क्लास? नहीं सर। सर नो प्रॉब्लम राइट नाउ। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मैंने आपको लेक्चर्स मेरा ख्याल है कि भेज दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स भेजे हैं, मोहम्मद आपको भी भेजे हैं, और सरमद आपको भी पिछले लेक्चर्स सारे भेज दिए हैं। मेरा ख्याल है आप उन लेक्चर्स को रीड करें और गो थ्रू करें। और दूसरा ये कि सरमद आपने क्लास में आना है मंडे वाले दिन, वही जो नॉर्मल टाइम है हमारा ग्रीन हॉल में 6 बजे। 6 बजे आप क्लास में आएंगे। ऑनलाइन नहीं, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको क्लास में समझ आना शुरू हो जाएगी। तो 6 बजे आपने क्लास में आना है। यू विल गो फॉर द नॉर्मल क्लास विच यू हैव टू टेक। और ये जो ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है ये भी साथ चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी, ये भी साथ साथ हम चलाते रहेंगे, ये कंटिन्यू करेगी आपकी क्लास जी। तो ये जरूरी है, तो ये क्लास साथ साथ चलेगी, क्योंकि ये बेसिक्स के लिए आपको मैंने स्टार्ट करवाई है, और जो दूसरे टॉपिक्स हमारे चलेंगे उसके लिए मैं आपको दूसरी क्लास स्टार्ट करवाऊंगा, जो कि हमने इसी क्लास में हम उसको टेकअप करके अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम। इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बस इसकी बेसिक्स कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें जनरल सी, बाकी हम डिस्कस बाद में करेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है दोज एक्सपेंसेस which are incurred on the purchase of a non-current asset that will be a capital expenditure. For example, अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है, सरमत कोई मशीनरी परचेज की है, कोई लैंड परचेज की है, कोई इक्विपमेंट परचेज की है, यानी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो कि सेल के लिए हम नहीं खरीदते, दे आर नॉट फॉर सेल पर्पस, दे आर यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड ऑल नॉन करंट एसेट्स आर बेसिकली दे आर, उन पे जो हम खर्चा करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी अगर आपने मशीनरी परचेज की है, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अगर आपने कैरेज पे की है, कैरेज या आपने फ्रेट पे की है मशीनरी खरीदने के लिए, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, क्योंकि आपने खर्चा तो मशीनरी खरीदने पे किया है ना। आपने एक्सपेंस किया जी, बिल्डिंग आपने तामीर की है, और बिल्डिंग तामीर करने पर आपने लोगों को वेजेस पे की है, यानी वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, क्योंकि आप बिल्डिंग परचेज करने पर खर्चा कर रहे हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाएगा। ये आपने चीजों को ध्यान में रखना है। तो फिक्स सबसे पहले कंडीशन जो अप्लाई होती है इसके ऊपर वो है फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग एसेट। If an expenditure is incurred for the purchase of a non-current asset, it is called capital expenditure. अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं और वो नॉन करंट एसेट को खरीदने पर किया जा रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। बट इफ एन एक्सपेंडिचर इज पेड फॉर द परचेज ऑफ ए सर्कुलेटिंग एसेट, और सर्कुलेटिंग एसेट क्या होता है, विच इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस, यानी गुड्स वगैरह, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कोई भी खर्चा जो आप नॉन करंट एसेट को परचेज करने पे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और कोई भी खर्चा जो आप सर्कुलेटिंग एसेट जिसे खरीदा है आपने बेचने के लिए उस पे करते हैं तो वो कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज आल्सो ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी खर्चा जो नॉन करंट एसेट्स पर किया जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, या और कोई भी खर्चा जो नॉर्मल गुड्स खरीदने पर किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो सेकंड कंडीशन इसकी बनती है वो है पीरियड ऑफ बेनिफिट। अगर कोई खर्चा आपका फायदा देता है एक साल से ज्यादा अरसे के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बिल्डिंग तामीर करते हैं एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वी गो फॉर द पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग, पेंट करवाते हैं, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज द फर्स्ट टाइम पेंट जो हम करवाएंगे उसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा। तो फर्स्ट टाइम जो आपने पेंट करवाया है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जबकि जो हम नॉर्मल पेंट करवाते हैं या नॉर्मल रिपेयर करवाते हैं, किसी भी अपने नॉन करंट एसेट पर मुरम्मत करवाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके अलावा इनिशिएशन ऑफ बिजनेस का नेक्स्ट हेडिंग है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इब्तदाई खर्चे, बिजनेस के जो शुरू के खर्चे होते हैं ना वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, सॉरी। अब इसको जरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं आपको। वो तमाम आइटम्स सरमद जो इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आई रिपीट अगेन, वो तमाम आइटम्स जो हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे सेल्स है, सेल्स रेवेन्यू रिसीट है, जैसे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तमाम आइटम्स जो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं वो सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और वो तमाम आइटम जो आप बैलेंस शीट में लिखते हैं वो सब कैपिटल नेचर के होते हैं। यानी अगर आपको खर्चा बिल्डिंग खरीदी है आपने तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन लिया आपने तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और सॉरी कैपिटल रिसीट है। अगर आपने लोन पे किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी वो खर्चा जो आप बैलेंस शीट के आइटम्स पर करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और वो खर्चा जो आप इनकम स्टेटमेंट पर के आइटम्स पर करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब इससे आगे चलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस या इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी। इफ एन एक्सपेंडिचर results in extending a business, it is called capital expenditure, otherwise revenue. Or if an expenditure results in increasing the earning capacity of the business, it is called capital expenditure. Let's suppose कि मैं एक स्कूल वैन चलाता हूं और मैंने स्कूल वैन के अंदर एक और सीट जो दरमियान में रखते हैं, छोटी सी पतली सी होती है, वो रख दी है, तो उससे मेरा बिजनेस एक्सटेंड हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं और बच्चे बिठा सकता हूं, तो दैट इज विल बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने कोई रेस्टोरेंट है मेरा और उसके बाहर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा लेता हूँ जो दूर से नजर आता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पीपल विल बी एबल टू नो दैट इज द रेस्टोरेंट व्हिच हैज बीन ओपन्ड एंड दैट इज अ बिग बिल बोर्ड व्हिच हैज बीन रेज्ड अप फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर restaurant, and that will increase the earning capacity of my business and my business will extend, so that is a capital expenditure. अगर मैं अपनी एकेडमी में एक कमरा और बना देता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उस खर्चे से मैं और बच्चे बढ़ा सकता हूं, यानी मेरा बिजनेस एक्सटेंड हो जाएगा और मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी।
तो that will also be results in extending the business or it will result in increase in the earning capacity of the business, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। इसी तरह जो मैं सिनेमा हॉल है मेरा, मैंने क्या किया कि सिनेमा हॉल में मैंने सोफा सीट लगवा दी है और उसकी जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स है उसको कंप्लीट रेनोवेट कर दिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि मजीद लोग अट्रैक्ट होंगे और मेरे जो है वो कैंपस में आएंगे और उसका हिस्सा बनेंगे, तो दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस, normal day-to-day expenses are called revenue expenditure or expenditure incurred for the normal running of the business. Running expenses or normal day-to-day expenses are called revenue expenditures. वो तमाम expenditure जो normal running of the business के अंदर आते हैं वो सब आपके revenue expenditures कहलाते हैं। All items which comes in the income statement are of revenue nature and all expenditures incurred to put the asset into working condition are capital expenditure. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने एसी खरीदा, एसी आप लोग भी खरीदते हैं, सारी बात है। तो इन्वर्टर एसी नए आए थे तो मैंने कहा चलो एक इन्वर्टर एसी घर के लिए ले लेता हूँ। तो आई हैव परचेज्ड अ न्यू एसी फॉर माय बेडरूम। तो वो जो एसी मैंने खरीदा उसकी एक अपनी कॉस्ट है और उसको लाने के लिए मुझे कैरेज भी पे करना पड़ा है और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मैंने पे किए। तो बेटा वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं और जो कैरेज है वो एसी की कॉस्ट में शामिल है और हम एसी को एसी के नाम से डेबिट करेंगे and total amount will be debited with the name of the machinery or AC and all the amount is a capital expenditure because that is incurred on the purchase of a non-current asset. Non-current asset खरीदने पर वो खर्चा हुआ है, वो capital expenditure से treat किया जाएगा, उसको revenue expenditure treat नहीं करेंगे क्योंकि normal day to day expenses हैं and वो one time expenditure है and that is called capital expenditure. तो ये भी कह सकते हैं आप कि जो one time expenditure होते हैं वो capital expenditure कहलाते हैं और जो नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बार बार अगर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं। यहाँ पे कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस नहीं है। यहाँ पे इस चैप्टर में कैपिटल का मतलब है वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं और वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इन पे अगर हम बात करें या इन पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि ये किस तरीके से मर्ज हुए हैं आपस में। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, परचेज ऑफ स्पेयर्स फॉर मशीनरी। देखें अगर आप स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं मशीनरी के लिए तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो तो दोबारा खरीदने पड़ेंगे आपको। लेकिन जो इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी है दैट विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर और आपने नया नॉन करंट एसेट में इजाफा किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप मरम्मत करवाते हैं, लेकिन परचेज ऑफ एडिशनल लूज टूल्स जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये आपके बार बार नहीं होना, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह एडवर्टाइजिंग कैंपेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन न्यू कंप्यूटर सिस्टम कैपिटल एक्सपेंडिचर है और परचेज ऑफ कंप्यूटर सीडीज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये आपने इस क्या कहते हैं इसकी पिक्चर आप इसकी ले लें ताकि आप इसको याद कर सकें और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंगल को इस पर मजीद बात करेंगे। इसकी पिक्चर आप ले लें ताकि घर में आप इसको मेमोराइज कर सकें या कम से कम इसको दोबारा आप रिवाइज कर सकें। इसकी पिक्चर आप ले लें। और सेकेंडली ट्यूसडे को हमारी क्लास 3 o'clock ही होगी, लेकिन उससे पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। We had discussed about entries, T accounts, trial balance and final accounts. I have already sent you the lectures and I want you to see the lectures again so that if there is any problem you can ask me on WhatsApp or any time which is convenient to you, especially on weekends. That would be easy for me to answer the questions. And secondly ये कि हम अपने जो basic chapters हैं वो almost हमने खत्म कर लिए हैं जो कि basics of accounting है। और ये जो basics of accounting है इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता, ये सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज है टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि अकाउंटिंग को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी होता है, वो हमने अभी तक हासिल किया है। मेरा ख्याल है कि मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ाए थे
जहां तक मुझे याद पड़ता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना? एनीवन हु कैन टेल मी? बिजनेस Yes, sir, you did. ये पढ़ाए थे मैंने, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और जी. गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जी, तो इसके मजीद कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसके हम जो है पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पास पेपर्स ही हैं आगे। दूसरा मैंने आपसे कहना था कि आपको मेरी बुक की जरूरत है, तो सरमद आप 2500 रुपीज ले आइएगा मंडे वाले दिन, ताकि मैं आपको बुक जो है वो एएस की आपको हैंड ओवर कर सकूं। और बाकी बच्चे जो है उन्होंने भी पे करना है, तो वो भी बुक जो है वो पेमेंट या तो मैं आपको भेज दूंगा, मैसेज कर दूंगा, अकाउंट नंबर उसमें जमा करा दें, ताकि मैं आपकी बुक जो है वो बनवानी पड़ेगी मुझे ना, तो अनलेस यू विल मेक द पेमेंट सो दैट आई कैन प्रिपेयर द बुक फॉर यू। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि बुक इज़ ए मस्ट, क्योंकि बुक के बगैर जो है वो आप जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मोहम्मद कोई मसला है तो बताएं। सरमद काइंडली लेक्चर सुन के आइएगा मंडे वाले दिन, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में जो कि हमने पढ़ रहे हैं अकेडमी में, वो अंडरस्टैंड आप कर सकें आसानी के साथ। और ये क्लास इस तरह ही, ताकि आपके साथ साथ पिछले भी लेक्चर जो है वो कवर होते रहे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज द क्लास। कोई भी क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बोलना कोई मना नहीं है। नेक्स्ट लेसन इज ऑन ट्यूसडे। नहीं सर, ठीक है जी, नेक्स्ट लेसन इज ऑन ट्यूसडे एट 3 o'clock। तो इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को 3 बजे हम यही बेसिक से स्टार्ट करेंगे जहां से हम कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे हैं। और सरमद लेक्चर्स प्लीज ले लीजिएगा जो पिछले मैंने पढ़ाए हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टेक केयर।